Good morning, 12th standard. Today we are going to discuss about the Khalraj law of independent migration of ions. Yet we have, till now, we have discussed about the strong electrolytes, weak electrolytes, and there is conductivity in different electrolytes, that also we have discussed. Now we are going to discuss about the Khalraj law. Okay, बच्चे? So as we can see here that there, as you can see, that Khalrashtra jo the, that he examined the limiting molar conductivity. We also discussed about the limiting molar conductivity. So he examined limiting molar conductivity values for a number of strong electrolytes. ठीक है बच्चे? He discussed the values for number of strong electrolytes like NaCl, copper sulfate, etc. Fine. And observed certain regularities, means there were the certain regular pattern he observed, and he observed during that the difference in limiting molar conductivity of electrolytes like NaX and Kx, जिसे हम NaCl और KCl भी कह सकते हैं, for NaX, that is nearly constant, approximately constant था. Like for example, उन्होंने जब limiting molar conductivity of KCl minus limiting molar conductivity of NaCl, that is equals to limiting molar conductivity of KBr minus limiting molar conductivity of sodium bromide. ठीक है? And which is equals to limiting molar conductivity of potassium iodide minus limiting molar conductivity of सोडियम आयोडाइड. एंड इन सब का जो डिफरेंस था सारे हेलाइट्स का, सोडियम हेलाइट्स एंड पोटेशियम हेलाइट्स का, इट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 23.4 सीमन स्क्वायर सेंटीमीटर पर मोल था. और ऐसे ही उन्होंने फिर सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम क्लोराइड, potassium bromide, potassium chloride means same halides, potassium halides, और difference in sodium halides में जब check किया, so उनका भी जो differences आ रहे थे, that is also approximately same, similar आ रहा था. It is near about 1.8 Siemen square centimeter per mole. So on the basis of these observation, he just concluded, and he gives a law of independent of migration of ions, and that law says that limiting molar conductivity of an electrolyte that can be represented as the sum of individual contribution, sum of individual contribution of anion and cation of electrolyte. ठीक है? माने अगर मैं बात करती हूँ कि लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव और लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है किसकी? सोडियम और क्लोराइड की. तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी सोडियम क्लोराइड की जो होगी, दैट विल बी गिवन बाय लैम्डा sum of the limiting molar individual limiting molar conductivity of sodium plus individual limiting molar conductivity of chloride ion. Generally अगर इस लॉ को कहें तो इलेक्ट्रोलाइट ऑन डिसोसिएशन क्या करेगा? एक इलेक्ट्रोलाइट को अगर हम तोड़ेंगे तो वो सपोज न्यू पॉजिटिव नंबर ऑफ कैटायंस एंड न्यू नेगेटिव नंबर ऑफ एनायंस देता है. तो इन दैट केस limiting molar conductivity can be shown by the formula, that is limiting molar lambda m naught is equals to nu positive multiplied by lambda not positive individually plus nu negative multiplied by lambda not negative, जहाँ पर कि lambda positive lambda negative not are the limiting molar conductivity होगी cation and anion की. ठीक है बच्चे? So that is all about the Khalrashk law of independent migration of ion. It is very very important. ठीक है? Especially to calculate the numerical problem based on the molar conductivity, and इसमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एज यू कैन से कुछ आयंस की वाटर के अंदर आपकी बुक में ये दी हुई है, वैल्यूज दी हुई है. एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दी व्हाट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दी वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि अगर हम बात करते हैं बेटा
एसिटिक एसिड की, सो बेसिकली इनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लोअर है एट हायर कॉन्सेंट्रेशन पे, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, एंड हिंस फॉर सच इलेक्ट्रोलाइट जो चेंज इन लैम्डा एम होगा, मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन होगा, दैट इज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है बच्चे, तो जैसे जैसे डिसोसिएशन की डिग्री बढ़ती जाएगी आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में डाइल्यूशन, आप जैसे जैसे मोलर कंडक्टिविटी में डाइल्यूशन इंक्रीज करते जाओगे तो दैट देयर विल बी द इंक्रीज इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एंड बिकॉज ऑफ विच द नंबर ऑफ आयंस इन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन which contains 1 mole of electrolyte। ठीक है, तो वो भी क्या होगा, चेंज होगा। और सच केसेस में मोलर कंडक्टिविटी जो है वो बहुत ही इंक्रीज करती है स्टीपली, बहुत तेज से, विद डाइल्यूशन, स्पेशली जब वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन में हो, जब आपने बहुत ज्यादा डाइल्यूशन कर दिया है। ठीक है, एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी that cannot be explained or obtained by the extrapolation of lambda m to zero concentration। ठीक है, कहने का मतलब सिंपल ये है कि इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे जब कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा और अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। लेकिन इतनी कम कॉन्सेंट्रेशन में आपकी कंडक्टिविटी भी इतनी कम हो जाएगी कि हम उसे एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की भी कैलकुलेट की जाती है, किससे, खलराश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। ठीक है जी, किससे करते हैं हम, खलराश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन से हम इसको क्या करते हैं, वी जस्ट कैलकुलेट इट। एंड अगर हम बात कर रहे हैं कि किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे C जो है, C इज द कॉन्सेंट्रेशन और अल्फा जो है वो क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो अल्फा जो होगा दैट इज इक्वल्स टू मोलर कंडक्टिविटी, रेशियो ऑफ मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और हमें ये भी मालूम है कि ये हम बेटा आयनिक इक्विलिब्रियम में ऑलरेडी कर चुके हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो होगा, ये तो आपकी बेटा यूजुअली अल्फा की वैल्यू है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिटिक एसिड के लिए Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट दैट इज इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी, सो जस्ट पुट द वैल्यू इन फॉर्मूला एंड इट विल गिव अस द value of आपकी Ka। Now if we are talking about the application of Kalraj law, so it is basically used to calculate limiting molar conductivity of any electrolyte from from the मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल आयन। तो अगर मुझे किसी आयन की मोलर कंडक्टिविटी पता है इंडिविजुअल आयन की, तो मैं उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ खलराश लॉ क्या कर सकती हूँ, कैलकुलेट कर सकती हूँ। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए भी मैं डिसोसिएशन कांस्टेंट और किसी भी कॉन्सेंट्रेशन में उनकी मोलर कंडक्टिविटी एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट कर सकती हूँ ना। जस्ट प्लीज हैव अ लुक ऑन दीज न्यूमेरिकल्स। हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है और आपकी कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट की वैल्यूज जो है लेमडा की उसने टेबल में दी हुई है, तो वहां से तो बेटा अगर जैसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CaCl2, तो देखो बेटा फॉर्मूला क्या बना, लैम्डा नॉट Ca2 पॉजिटिव, ब्रेकअप करोगे Ca2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव होगा, तो 2 लैम्डा Cl नेगेटिव हो गया, 2 आगे कोफिशिएंट में आ जाएगा। ठीक है, एंड विच इज इक्वल्स टू, अब ये वैल्यूज हम टेबल से या आपको क्वेश्चन में गिवन होगी तो वहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं एंड देन just apply in the formula। Similarly अगर मैग्नीशियम सल्फेट है तो टूटेगा Mg2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव में, तो लैम्डा नॉट Mg2 पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट SO4 2 नेगेटिव, वैल्यूज आपको गिवन होंगी, जस्ट कैलकुलेट द वैल्यू। सिमिलरली अब इसमें देखो ये एक इंपॉर्टेंट है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी NaCl HCl और सोडियम एसिटेट की। ठीक है, आपको गिवन है और आपको निकालनी है कंडक्टिविटी फॉर
एसिटिक एसिड की। तो सबसे पहले इक्वेशन बनाओ कि मुझे एसिटिक एसिड कैसे मिलेगा। तो अगर मैं अब आयंस में तोड़ दो सबको, तो ये टूटेगा H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये टूटेगा एसीटेट प्लस Na पॉजिटिव, और ये टूटेगा Na पॉजिटिव प्लस क्लोराइड नेगेटिव। ठीक है, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HAC कैसे मिली बेटा? H प्लस AC, यही चाहिए मुझे इसके लिए। तो अब सारे आयंस को हम प्लस माइनस करते हैं, रीअरेंज करते हैं आफ्टर सम अप एंड सब्ट्रैक्शन, एंड वी हैव टू ऑब्टेन दिस। तो मैंने क्या किया, HCl प्लस सोडियम एसिटेट माइनस सोडियम क्लोराइड करती हूँ। तो यहाँ से देखो बेटा, सोडियम पॉजिटिव ये और ये तो दोनों कट जाएंगे, तो अब क्या बचा मेरे पास, और क्लोराइड भी ये और ये भी कट गया, तो बच क्या गया, लैम्डा H नॉट और लैम्डा AC की वैल्यू बच गई, यही बचा ना। तो जस्ट पुट अप द वैल्यूज, तो ये पूरी सबकी वैल्यूज लिखने पे मुझे यही वैल्यू एट लास्ट मिल रही है। यहाँ देखिए, जस्ट ये न्यूमेरिकल क्योंकि काफ़ी बार पूछा जाता है, तो मैंने बोला ये रीअरेंज इस तरीके से करना है कि आपका क्या हो जाए, चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो, बट जो इंडिपेंडेंट आयंस है वो आपस में क्या हो जाए, कॉमन आयंस कट हो जाए। तो यू हैव टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट इट। सो व्हेन आई एम एडिंग द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl and sodium acetate and subtracting the limiting molar conductivity of NaCl from it, then I will get the value for the limiting molar conductivity of HCl। तो ये मैंने आपको बताया कि ये कट हो जाएगा, तो ये बच जाएगा आपका। So just put the values from given in your numerical and write down calculate the final answer. Okay, the next one we now move up to, so conductivity of acetic acid आपको दी हुई है, ठीक है, उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka की वैल्यू आपको निकालनी है, और जिसमें कि लैम्डा m नॉट आपसे वो पूछ रहा है कि एसिटिक एसिड का क्या, लैम्डा m नॉट की वैल्यू आपको दी हुई है, मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है, और आपको Ka निकालना है। तो सबसे पहले मुझे Ka निकालने के लिए मुझे मालूम है द फॉर्मूला इज C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो सबसे मुझे अल्फा कैलकुलेट करना है, एंड अल्फा कैलकुलेट करने के साथ साथ अल्फा इज इक्वल्स टू लैम्डा m अपॉन लैम्डा m नॉट। अब लैम्डा m मुझे गिवन है, तो लैम्डा m मुझे निकालना है क्योंकि लैम्डा m नॉट मुझे दिया हुआ है। तो लैम्डा m क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू कापा अपॉन C कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, इनटू कापा इंटू 1000 अपॉन C, यही होती है। तो वैल्यू बेटा पुट अप करो, कंडक्टिविटी आपको दी हुई है मोल पर लीटर में, और कापा की वैल्यू भी दी हुई है, ठीक है, कंडक्टिविटी दी हुई है। सो जस्ट calculate the value of lambda m, then with the help of lambda m and lambda m naught calculate the value of alpha. Alpha is equals to lambda m upon lambda m naught। तो यहाँ values put up की, calculation हुई, and now put the value of alpha in formula of dissociation constant which is equals to C into alpha square upon 1 minus alpha। तो यहाँ से हमारा ये न्यूमेरिकल आ गया। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम इस न्यूमेरिकल में? सो देयर आर द न्यूमेरिकल्स गिवन इन द बैक एक्सरसाइज आल्सो related to this one which you have to do, and today we have discussed about the Khalraj law and what type of values can be given in it. ठीक है, now there is the question, why does the conductivity of solution, मैंने आपको बताया ही था कि वो डिक्रीज क्यों कर रही है डाइल्यूशन के साथ, डिटरमाइन लैम्डा m नॉट वैल्यू ऑफ वाटर, और ये एक न्यूमेरिकल बिल्कुल पहले वाले न्यूमेरिकल्स के ऊपर ही है। सो जस्ट डू द प्रैक्टिस ऑफ दीज 3 questions in today in your as a homework, as well as the numerical which is given at the back exercise related to the Kharaj law, that also you have to do. Okay bache, so this is for today. Thank you.